Yeah, you can start now. Okay. Yes. So I want to share screen. Can you see my screen, sister? Yes, sister. Okay. Yes, God. Yes, God. Okay. I thought we will revise on this psalm. Mm-hmm. Okay. But first we will just uh, say the opening prayer. No. यस सिस्टर वी सी दी ओपनिंग प्रेयर हम लोग ओपनिंग प्रेयर करके और गैर जबान में 5 मिनट की दुआ करके फिर हम अपनी फिर आप अपना शेयरिंग शुरू करें जी. ठीक है चलें In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. पिता परमेश्वर प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के नाम हम ये प्रार्थना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु आपका बहुत ही धन्यवाद कि हम इस वक्त जुड़े हैं और भी लोग जुड़ने वाले हैं जो हम सीखने वाले हैं और जो हमने सीखा है वो रिवाइज करने वाले हैं उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु आपकी आपका पवित्र आत्मा हमें मदद करता है कि हमने जो भी सीखा है हमें वो याद करने की क्षमता देता है और इस समय के लिए जो हम औरों को भी समझा सके आपका वचन जो हमने सीखा है जिससे हमें जो हमारे बुरे वक्त में या आजमाइश के वक्त में जो हमें वचन याद आया और जिससे हमें प्रेरणा मिली जिससे हमें हिम्मत मिली वही हिम्मत हम औरों को भी दें जो आप आए हैं आप you came to serve, O Lord. You said that you came to serve and not to be served. And we are the vessels through whom you serve, O Lord. I thank you and praise you for this time. We are blessed and anointed to become a blessing, O Lord. We make this prayer through Jesus Christ, your only Son. Amen. आमीन So we'll pray in tongues for some time. यस सिस्टर हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस शुक्र है खुदावंद तेरा शुक्र है Hallelujah. Hallelujah. Shabba halila wa halayya wa hala wa halayya ala wa hiya ya ala wa hala wa hala wa hiya la Shabba halayya la huwa hiya ayya huwa la ilaha wa la ilaha wa hala wa ayya wa la huwa la wa ya Shabba hayya la huwa ayya wa la ilaha wa la hala wa hiya ya wa la laita wa la ala huwa ayya wa hiya wa ya Shababahaya la waya la wahlina wahla wahya ayala la huwa ayala wahala wahi ayala waya la hla wahala waya la Shababahaya la walaila huwa hi ayala walaila la wahla wahla ayala walaila la ila huwa yala shababaha ayala walaila la wahala wahi ayala walaila la huwa la wayala Shabahaya Laila Waya Laila La Waha Laila Hia Laila Walaila La Wahala Wahia Yalanda Wahala Wahia Laila Wahala Wahia Shabahaya Laila Waya Laila Hua Iya Laila Walaila Hua Iya Walaila Walai Alila Hua Alawahala Shabahala Wahala Wahia Laila Shabahaya Yalaila Walaila Hua Iya Yala Hala Hua Hia Yalaila Hua Hi Ayala Wai Ala Wahala Wahia La Wahala Waya Shibabahala wahala ila ila wala ila halwa hi ayala ila wala ila halwa ala ila huwa la la shibabahala wahala ayala wala ila huwa halwa hi ala wayala shibabaha ayala wala ila la huwa hi ayala ila huwa ala ila hi ala ala wahla wahla ila wala ila huwa ayala ila wala ila la wala ila shibabahala wahila wayala wayala ila
Shibaba hiya la ila wa la hiya la wa hiya ayala wa la ila wa la shibaba hala wa hiya la ila hiya wa hiya la wa la ila. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shukra Khudavand tera. Thank you, Praise you, Jesus. Jesus. Praise you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. तो आज हम रिवाइज करते हैं साम 57 वर्स। ये पूरा साम जितना हमारे पास टाइम है, जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे। तो सिस्टर फ्लोरी ने हमें सिखाया था। हे परमेश्वर, मुझ पर करुणा कर, मुझ पर दयालु हो, क्योंकि मेरे मन की आस्था तुझ में है। Be merciful to me, O God, be merciful to me, for in you my soul takes refuge. In the shadow of your wings I will take refuge till the storms of destruction pass by. ये जो पहला वर्स है, हमने इतना डीप नहीं सीखा था। आई थिंक वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम वर्स 2, बट I thought I will just start from verse 1 because हम जो भी आजमाइश से गुजरते हैं, हमने ये सीखा है कि ये जो डेविड ने लिखा है ना, बी मर्सीफुल टू मी ओ गॉड, हे परमेश्वर मुझ पर करुणा कर। प्रभु पिता परमेश्वर ये इतना मतलब करुणा और मर्सी से भरे हुए हैं। वो खुद ही मर्सीफुल है, वो खुद ही मर्सी है। तो मर्सी का क्या मतलब है? What does mercy mean to us? जैसे एग्जाम्पल दिया था सिस्टर फ्लोरी ने कि अगर एक बच्चा है क्लास में जो मतलब जो बहुत ही शैतानी कर, बहुत ही नॉट शैतानी, इट्स रॉन्ग वर्ड, बट बॉइस्टरस है, जैसे बहुत ही नॉटी है, जो कहा वो करने, जो कहा वो उसका उल्टा ही करता है। दूसरे बच्चों को समझो अपना होमवर्क करके नहीं आया, तो टीचर बजाय इसके कि उसको सजा दे, वो उस पर दया करती है और वो कहती है कि बच्चे आज मैं मतलब उसको जाने देती है, और इंस्टेड और बजाय इसके कि उसको सजा दे, वो उसको क्षमा करती है। तो वो जो है वो है मर्सी ना। तो पिता परमेश्वर वो हमें, वो तो खुद ही इतना मर्सी से भरे हुए हैं कि हम बार बार हम गलतियां करते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर ये कहते हैं कि अगर आपने गलती करी तो उस पर ही मत रहो, उठो और हाथ बढ़ाओ। प्रभु मेरे बेटे से मैंने अपना एकमात्र बेटा भेजा, पुत्र भेजा, उसके द्वारा, पवित्र आत्मा द्वारा आप
तुरंत ही अपना हमने जो गलतियां की हैं उससे हमें क्षमा मिलती है। तो वो मर्सी हमें उसी वक्त मिलती है, क्योंकि वो दयालु है, मुझ पर दयालु हो, क्योंकि मेरे मन की आस्था तुझ में है। क्योंकि वी कैन लुक अप टू ओनली एंड ओनली गॉड, क्योंकि हम एकमात्र प्रभु की तरफ ही देख सकते हैं, जो हमें हमारी गलतियों से, हमारे पापों से, जिन्होंने हमें ऑलरेडी मुक्ति दे चुके हैं, है ना। हम्म वो इतनी दया उन्होंने हमें दिखाई कि अपना एकमात्र पुत्र भेजा, क्रूस पे लटक गया हम्म और हमें उन्होंने छुटकारा दिया। और उन्हीं में हमारी आत्मा, हमारा सोल, हमारा जो मन है वो टेक्स रेफ्यूज, यानी हमें शरण देता है। आई डोंट नो व्हाट डू यू से फॉर रेफ्यूज इन हिंदी, इन उर्दू। रेफ्यूज, इन हिंदी इट इज पना, पना। हाँ, हाँ, टेक्स, पना देता है। राइट। एंड इन द शैडो ऑफ योर विंग्स I will take refuge. Again, this sentence is repeated, we also read it in Psalm 91, कि हम उनके पिता परमेश्वर के जो पंख है उसमें हम शरण लेते हैं, कि जब तक हमारे हम जो आजमाइश से गुजर रहे, वो हमें इतनी अच्छी तरह से पनाह देते हैं, शरण देते हैं, कि ये जो शैतान है, जो भी उसने हमारी तरफ जो भी आजमाइश हम गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, उससे हमें बचाते हैं। मैं तेरी पास मैं तेरे पास तेरी ओट पाने को आया हूँ। In the shadow of your wings I will take refuge. तो इसका इंग्लिश में अनुवाद है कि इन द शैडो ऑफ योर विंग्स आई टेक रेफ्यूज, एंड इन हिंदी इट इज मैं तेरे पास तेरी ओट पाने को आया हूँ, जब तक संकट दूर न हो। तो हम जब इसका मनन करते हैं, तो टिल द टाइम द लॉर्ड प्रोटेक्ट्स अस, before and during the time that we need to take refuge from him, until the storm till the storms of destruction pass by. तो पिता परमेश्वर हमें कहते हैं कि आप मेरे पंख, मेरे विंग्स के नीचे अंदर आ जाओ, मैं आपको शरण देता हूँ। तो क्योंकि शैतान को वो हम दिखते भी नहीं है, he will not even be able to look at us at that time. दूर से ही उसको भगा देगा, वो भाग जाएगा, क्योंकि उसको हम लोग दिखते ही नहीं है। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल ऑफ द चिकन looking after the baby chicks. जब वो जो ईगल comes to look for to take the baby chicks for his meal, the mother chicken, the mother hen, brings calls the her baby chicks close to her and takes refuge under the wings, right? Till the time the eagle passes by, जब तक वो eagle, I don't know what is eagle said in Hindi, but eagle is in
Urdu it is, I think, cheel. हाँ, the same way, same in Hindi also, I think. जब भी वो चील आती है, चील आती है, एक baby chicks, I don't know what to say, I'm really sorry. Chooza. हाँ, चूजे को खाने के लिए अपना खाने में, लेकिन माँ अपने सारे चूजों को बुलाती है और अपने पंख के नीचे शरण देती है। तो उस वक्त जब तक वो चील चली ना जाए, उड़ ना जाए, वहां से खतरा टल ना जाए, तब तक अपनी वो माँ अपने चूजों को जाने नहीं देती। तो डेविड ने ये साम में लिखा है कि हम आपकी शरण में आए हैं, अंडर refuge until the storms of destruction pass by. Praise God. I cry out to God Most High, to God who fulfills His purpose for me. Whatever the purpose that God has brought me in this world, वो जो जिस कार्य के लिए, जैसा वर्स 2 है, हे परमेश्वर, मैं सहायता पाने के लिए विनती करता हूँ। परमेश्वर मेरी पूरी तरह ध्यान रखता है। तो जिस कार्य के लिए पिता परमेश्वर ने हमें भेजा है, तो अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर ने मुझे कोई बुरा रिपोर्ट दिया और मैंने उस रिपोर्ट को नकारते हुए उस वक्त मैंने अपनी जबान से प्रभु का वचन बोला, और उसी वक्त मैं उनके शरण में आ गई, उनके पंख के नीचे आ गई, ठीक है। और मैं ये बोलती गई वचन की, प्रभु मेरे लिए आपका वचन ही एकमात्र सबसे ऊपर है, और ये जो शैतान का ने डॉक्टर द्वारा रिपोर्ट दिया है, ये झूठ है, मैं इसमें नहीं मानती। लेकिन आपका जो वचन है वही सत्य है। तो उसी वक्त मैं अपने मुंह से ये कहती हूँ कि मैं मेरे पिता परमेश्वर के वचन में हूँ, और आप ही मुझे शरण देते हो। तो उसके बाद मुझे ये एहसास भी होता है, मेरी आत्मा भी मुझे ये बोलती है कि मैं अगर बची हूँ, ओके, मैं ये बची हूँ, तो उसमें मैं ऐसे उसे जाया नहीं होने दूंगी, ठीक है। पिता परमेश्वर ने मुझे किस काम के लिए बचाया है, वो जारी रखना है मैंने, है ना। जैसे जो भी है, मतलब अगर मैं डॉक्टर के यहाँ पे जाती हूँ, तो मैं ये ट्राई करती हूँ कि 2-3 कोई भी मुझे मिल जाए जो मुझे हॉस्पिटल में जो भी मेरे जैसे, जिससे मुझे शरण मिली, वही क्यों ना मैं उनसे बांटूं, और उनसे उनसे कहूं कि आप भी मेरे पिता परमेश्वर के पंख के नीचे आ जाओ। उनका जो पंख है वो आपके लिए भी है। प्रभु यीशु ने क्रूस पे जान दी, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं, सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं, सबके लिए। तो उनको मैं वही बताती हूँ जिससे मुझे
राहत मिली। तो जो पर्पस है मेरे लिए, तो उससे मैं हम्म, अम, उसको पूरा करने के लिए देखती हूँ, क्योंकि वो करते वक्त पिता परमेश्वर मेरा पूरा ध्यान रखता है। He makes sure that whatever I speak, whatever irrespective of the religion, there are in some in some countries, I speak boldly to that person हम्म, because I know, मुझे पता है कि शायद ये some people might not like it, but those who are in distress at that time, those who are in pain um, at that time, like who's going through similar affliction, हम्म, they will understand what I am saying because they can see I have been through it. So when I offer them the everlasting life that Jesus is offering, not I offer, sorry, that Jesus is offering through me, and I have been through that similar affliction, and that His purpose is being fulfilled through me. Praise God. हम्म। Sister, am I? जी सिस्टर, कैरी ऑन। मैं सुन रही हूँ। Okay. Then we come to verse 3. He will send from heaven and save me. He will put to shame who tramples on me. वह मेरी सहायता स्वर्ग से करता है और वह मुझको बचा लेता है। जो लोग मुझको सताया करते हैं, वह उनको हराता है। परमेश्वर मुझ पर निज सच्चा प्रेम दर्शाता है। तो इसका एग्जाम्पल सिस्टर फ्लोरी ने दिया था और मेरे साथ भी हुआ था कि ऑफिस में ना हम्म, अम, ऐसे मतलब बहुत लोग होते थे कि हमारे ऑफिस में रेसिज्म उस टाइम पे बहुत होता था, क्योंकि आई वॉज ओनली मैं इकलौती थी जो इंडियन थी। ओके। हम्म, और ऐसा होता था कि जो बाकी मेरे कलीग्स हैं, I like I was an executive secretary, so I used to dress हम्म, in corporate attire. Okay, ओके। हम्म, but I will not dress up like I'm going for a New York ramp. हम्म, Okay, because I don't. That's not my style. Uh, Very seldom do I wear makeup and things like that when I go to office. ओके। Whereas others used to come, and moreover, after working hours, मेरा जो मैं जब भी मेरा ये मतलब मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि अपना काम करो, और जब भी काम है तो ऑफिस में रहो, और काम नहीं है मतलब एक्स्ट्रा काम नहीं है, अपने टाइम पे घर पे चले जाओ और फैमिली के साथ टाइम बिताओ, है ना। तो हम्म, these were my priorities, बट औरों के ऐसा नहीं था। तो दे लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल, मतलब उनका प्रायोरिटीज अलग है। हम्म, तो एंड दे मे बी हैविंग हेल्प एट देयर होम आल्सो। हम्म, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा नहीं था,
मुझे घर जाके खाना बनाना है, whatever, like, and I enjoy doing that. For me, that is my priority. Mhm. I don't enjoy going out, and for me, that's a waste of time. You Mhm. know, drinking and partying and things like that. ऐसा नहीं कि मैं पार्टी नहीं करती हूँ, लेकिन that will also be with the family members Mhm. or familiar people, never with the office people. So that's how I have been brought up. My life has been like that. एंड दिस इज आई एम नॉट, मैंने ये बोल रही हूँ कि मैं कोई संत हूँ ऐसा वैसा, लेकिन हम पार्टी करते हैं, कुछ भी करना है, हम जो फेमिलियर लोग हैं उनके साथ मेरा प्रायोरिटी होता था। तो ऑफिस में ये होता था कि आई यूज टू बी सिंगल्ड आउट। Mhm. Okay, like Okay. another word is like kind of ostracized. Mhm. Otherwise, काम कंप्लीट करने के लिए डायना ये कर दो, डायना वो कर दो, या बिना वजह के ना, मतलब हम लोग फटाफट हमारा काम करके औरों का काम भी हम लोग मैं करती थी, क्योंकि मुझे ऐसे फारिग बैठना, ऐसे टाइम वेस्ट करना नहीं अच्छा लगता था। Mhm. तो ऐसा होता था ना कि हर साल, जैसे आप बोलती हो ना कि अप्रेजल के वक्त तो, लेकिन अम, ऐसा दिखता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, Mhm. बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन असिस्टिंग पीपल, है ना। Mhm. तो Mhm. तभी वी आई यूज टू फील वेरी इंसल्टेड कि लॉर्ड, आई यूज टू क्राई आउट टू गॉड कि why, Lord, that I've done so much of work, I've helped out in this project and that project, लेकिन एक बार ही ऐसा हुआ, जैसे आपने कहा गवाही में कि Hello. हेलो, Yes, आई एम sister. लिसनिंग हियर मीनो सिस्टर। Yes, yes, sister. I'm listening to you. मैं सुन रही या हूँ. सो फॉर मी नो दिस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सॉरी बोलने में No, ना। no, no, no problem, sister. Praise God. आप सही जा रहे. थैंक यू जीसस। तो एक बार ही ऐसे हुआ, एक बार मैंने मेरे बॉस को ना ऐसे सीधा मैंने अप्रेजल से पहले बोला, लॉर्ड, यू गो बिफोर मी, Mhm. एंड आई बिलीव इन यू, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। Mhm. You know what I have done, and you have been with me this entire year, ये पूरे साल में जो भी काम मैंने किया है, आपने मेरी मदद की है। और कभी कभी ऐसे इतने बड़े बड़े एक्सेल स्प्रेडशीट्स होते थे ना, Mhm. मुझे बिना ट्रेनिंग के, मतलब उन लोग बोलते थे ये कंप्लीट कर दो, वो कंप्लीट कर दो, और जबकि वो मेरा काम होता भी नहीं था। द रिपोर्ट्स आर सपोज टू कम टू मी, and Mhm. I'm just supposed to print them off and bring it in front of my boss, maybe format it a little bit here and there, take Mhm. proper printouts and give it to my boss. But I used to take that extra step, keep my mouth shut, and I used to say, I'm working for the Lord and not for mere men. No, ऐसे मेरे Mhm. दिमाग में होली स्पिरिट में बोलती थी, होली स्पिरिट आप ही मेरी सहायता करो, क्योंकि मुझे तो इतना इतना एक्सेल में मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली। तो पता नहीं कैसे वो पूरा का पूरा एक्सेल स्प्रेडशीट हो जाता था, प्रिंट Mhm. भी मैं करती थी, और वो बिफोर टाइम, जैसे मुझे 2 हफ्ते का टाइम लिमिट दिया हुआ है, वो 2-3 दिन में हो जाता था। एंड माय कलीग्स यूज्ड टू बी अमेज्ड कि ये कैसे हो गया।
तो दिस सेंटेंस ना, ये जो वाक्य है ना, जो लोग मुझको सताया करते हैं वो उनको हराता है। तो गॉड यूज्ड टू, आई डिडंट हैव टू लिफ्ट अ फिंगर। हम्म जो बड़ी बड़ी फाइलें जो मैनेजर्स उन लोग नहीं कर पाते थे, वो मैं बिना मुश्किल के पवित्र आत्मा मतलब के हेल्प से वो हो जाता था। एक बार ही ऐसे हुआ कि एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो 2 साल लगे किसी को करने में, हम्म सिंपल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, हम्म नया नया का नया सॉफ्टवेयर लाया गया था। हम्म एंड इमेजिन 1500 स्टाफ मेंबर्स हम्म प्लस अनगिनत कॉन्ट्रैक्टर्स, various fields, various oil fields, various डिपार्टमेंट्स में उनका कलर कोडिंग करना, उनको एक कोड देना, इट वाज नॉट अ जोक। हम्म जो 2 साल के ऊपर लगा वो भी वो उन लोग नहीं कर पाए। वो पूरा का पूरा जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजियो था हम्म ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के लिए, वो उनको 2 साल के ऊपर लगा। और मुझे एक नया का नया सॉफ्टवेयर दिया गया, हम्म इसकी खास ट्रेनिंग भी नहीं मिली, कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। मुझे बस बोल दिया कि आईटी वालों के साथ बैठो और समझो इसको और करो। तो मैं किसके पास जाऊं? तो मैंने बोला अपने बॉस को ना, सर शाम को मेरे ऑफिस से ना, जहाँ पे मैं रहती हूँ बहुत दूर रहती हूँ, मुझे ना बस भी नहीं मिलती, टैक्सी भी नहीं आता है। क्यों? हम्म टैक्सी क्या कहते हैं ना, उस टाइम पे उनका शिफ्ट चेंज रहता है। इट सीम्स वेरी ट्रिवियल टू देम, ये ना बहाने लगते हैं उनको। हम्म लेकिन दुबई में टैक्सियों की कमी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे होता था कि वन वे इज 50 दिरहम। हम्म फॉर मी एट दैट टाइम 50 दिरहम्स was a lot of money. okay Okay, and हम्म even now people will not spend 50 dirhams for one trip. It's a lot of money हम्म multiplied by 20 हम्म Indian rupees, no? One हम्म trip, one way. तो okay मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ कि हम्म तो वो ऐसे इतना मतलब आग बबूला होता था ना कि ये तो मतलब बहाने हैं, तुमसे नहीं हो रहा है तो हम्म ठीक है, कोई बात नहीं, मैं किसी और को काम पे लगाता हूँ तो मुझे ऐसे बुरा होता था, मुझे इंसल्ट करते थे वो। फिर मैं पवित्र आत्मा को का की मदद लिया मैंने हम्म बोला, होली स्पिरिट यू हेल्प मी, आई डोंट नो वेयर टू गो। बिना ट्रेनिंग का नया सॉफ्टवेयर जो इन लोगों ने 2 साल के ऊपर लगाया, एक नोन सॉफ्टवेयर, ऑग पब्लिशर, no sorry, Microsoft Visio, which is a part of Microsoft, which is a known software, 2 साल के ऊपर लगाया। मुझे ऑग पब्लिशर नया का नया सॉफ्टवेयर दिया है, हम्म which I don't know if it is compatible or not. So many elements are there to consider. okay क्या मैं रोज रात को 10 बजे तक ऑफिस में बैठती थी, और जो हम्म उन्होंने 2 साल में नहीं किया ना, वो मैंने हम्म 2 हफ्ते में कर दिया। और वो मैंने नहीं किया, praise God मैं उसका कोई क्रेडिट ले भी नहीं सकती। मुझे ये मालूम है कि ये सुपर नेचुरली हुआ है। हम्म ये तो मतलब तो they were all, each and every person, they used to literally come to my desk and laugh at me हम्म कि
How far have you reached? कैसा मतलब आप सोचो आप नए नए ऑफिस में हो एंड यू आर पुट अंडर दिस प्रेशर. So this is a testimony for Psalm 57 verse uh, 3 na. He will send from heaven, he will send from heaven and save me. He will put to shame who tramples on me. People who used to laugh at me, they were put to shame in this way. I didn't have to lift my finger. And praise be to God कि मुझे भी ऐसा मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं उनके ऊपर हंसूं कि तुमसे 2 साल में क्या हुआ. Praise God. And God sent out his steadfast love and his faithfulness. और मैं जब भी घर पे आती थी ना, मेरे हस्बैंड मुझे इतना सपोर्ट करते थे कि मैं उनको पहले ही बोलती थी कि मैं आके खाना बनाऊंगी, लेकिन आप बस ये चॉप करके रखो, क्योंकि दैट टाइम आई डिड नॉट हैव माय डॉटर. हम तो वो चॉपिंग वगैरह करके रखते थे और मैं रात को 9-10 बजे फटाफट सब्जी बनाती थी. और हम लोग है ना जो ब्राउन खुबूस है ना, ब्राउन रोटी, वो सुपरमार्केट से लेके आके 2 हफ्ते हम लोग ने ऐसे ना सब्जी रोटी जो मिल जाए हम लोग ऐसे खाते थे, क्योंकि बिना हस्बैंड के सपोर्ट के गॉड यूज्ड टू लाइक support me through my husband also, through his love. Praise So God. yeah, um, so praise be to God. This sentence is so good. It has manifested in my life. प्रेज गॉड कि उन्होंने उस वक्त जो मुझसे ह्यूमनली इम्पॉसिबल होता है, वो अपने एंजल्स द्वारा ना मुझे टैक्सी नहीं मिलता था. और वो ऐसा रोड है ना जहाँ पे बस स्टॉप भी नहीं है. यहाँ पे तो दुबई में रिक्शा भी नहीं है ना, टैक्सी वाला भी नहीं आएगा, और टैक्सी आएगा तो भी उसको 50 दिरहम में दूंगी नहीं. तो रात को 10 बजे मेरे हस्बैंड आते थे मुझे पिकअप करने, 9 बजे 10 बजे, या कोई ना कोई मुझे आईटी डिपार्टमेंट वाला कोई बस स्टॉप पे ऐसे छोड़ देगा. और मैं 1 घंटे का ड्राइव 1-1.5 घंटा बस में जाती थी, क्योंकि मेरा घर बहुत दूर है वो मेरे ऑफिस से. So he used to send his angels, mighty warriors, to protect me. ऐसे दुबई तो बहुत ही सेफ है. तो सिस्टर आपने आपने खुदावन पर ईमान और उसके कलाम पर ईमान रखकर यकीन किया कि खुदावन ही आपका मददगार है, राइट? जी. हाँ, तो जिस तरह से आप बता रही हैं कि हर आजमाइश के मौके पर और हर मुश्किल घड़ी में आपने सिर्फ खुदावन पर ईमान रखा और वो ईमान में आप अटल खड़ी थी. आप मतलब आप हिली नहीं, चाहे आंधी है, तूफान है, आपने खुदावन पर पूरा ईमान और उसके वादों पर यकीन किया कि ये जो मुश्किल घड़ी है वो सिर्फ खुदावन आपको उससे निकालेगा और खुदावन ने उसमें आपको बरकत भी दी, राइट? हाँ, क्योंकि देखिए मतलब ऐसे मतलब मुझे नहीं मालूम अगर आप वैसे ऑफिस में काम करते हो, लेकिन मेरे ऑफिस में ऐसे लोग थे ना कि उनसे अगर मदद मांगो ना कि मुझे एक्सेल में ये फॉर्मूला नहीं आता है, तो उन लोग है ना आपको सिखाएंगे नहीं, वो फॉर्मूला उस टाइम पे डाल के देंगे एक ही बार, फिर बोलेंगे कि आप लाइक दे विल इंसल्ट यू बाय सेइंग आई पेड फॉर माय कोर्स. Okay. If you want, you go pay,
learn it and then हम्म, do it. जबकि मेरे पास just to put me down, you know, तो हम्म, उनको चाहिए कि मैं मतलब एक इकलौती एक एक दो ही इंडियन थे ना, हम्म, और आप सोचो एक पूरा का पूरा ऑफिस खाली है और हम्म, पूरा का पूरा बिल्डिंग खाली है, और मैं वो 3:30-4 बजे, मैक्सिमम 5 बजे तक पूरा का पूरा ऑफिस खाली हो जाता था। तो उस टाइम पे एक लड़की बैठी है हम्म, एंड इज डूइंग दिस वर्क ऑन एक्सेल स्प्रेडशीट। क्लीनर लोग भी 7 बजे तक जाता है क्योंकि उन लोग का बस आता है उस टाइम पे। तो एट okay, दैट टाइम हु विल आई लुक अप टू? कौन आएगा मेरे लिए apart from God Most High and His angels, His Holy Spirit? Who can come for me? उस टाइम exactly, पे मैं exactly, वचन में इतना नहीं थी, लेकिन हम्म, but I used to just say some verses that I was familiar of, or basically my relationship with Jesus was on a personal level. I just talk to him like a friend. Lord, I don't know how this is going to happen, but you are with me. Psalm 23 मुझे याद आता था कि even हम्म, if I walk through the valley, valley of death or the deepest shadows, you are with me. Lord, I don't know how this is going to happen, but I know that you are with me. You only take complete control of this. हम्म, तो जैसे तैसे ना वो that was a really big achievement that I did in that office. Praise be to God. All honor, praise, and glory to God, because there was no other way. praise God. Yes. So He used to send angels, even when I go home, somebody or हम्म, the other from the office, like from IT department, they used to stay late क्योंकि उनको ट्रैफिक से बचना है। हम्म, तो they will not travel during the busy hours। मतलब 2-2, 3-3 घंटे ट्रैफिक में हम्म, बिताने से अच्छा वो लोग ऑफिस में काम करेंगे तो अच्छा है ना। तो हम्म, क्या होता है ना, इससे दो बातें होती है। एक तो उनका काम तो जरूरी होता है, दूसरा वो बॉस को बता सकते हैं कि हम यार कितना देर बैठे थे ऑफिस में काम करते हुए, कितना घंटे हम लोग ने काम किया, वो टाइप। हाँ, that's good. हाँ, बहुत लोग ऐसे करते हैं ना, बट मोस्टली वी ऑल नो इट इज टू अवॉइड द 2 to 3 hours ट्रैफिक जैम। हम्म, So this was the testimony for this verse where I cry out to God Most High, हे परमेश्वर, मैं सहायता पाने के लिए विनती करता हूँ। हम्म, परमेश्वर मेरी पूरी तरह ध्यान रखता है, वह मेरी सहायता स्वर्ग से करता है। He will send from heaven and save me, and he puts to shame who tramples on me. तो जो लोग मुझे नीचा दिखाते थे या मुझ पर लोग हंसते थे, उनको उनके सामने अ, मुझे मुझे उन्होंने सच्चा प्रेम दर्शाता है। तो सच्चा प्रेम दर्शाया, his steadfast love and his faithfulness. This was clearly displayed at the time, and not that's not the only time. There were many occasions like this. Praise God. praise God. So sister, ओके। मैं इस पर थोड़ी बहुत मैं आप बताती हूँ कि मेरी कैसी शेयरिंग थी कि हमने ये सीखा था कि हमें खुदावन की हम्द सना हमेशा करनी चाहिए।
जैसे ये ज़बूर में आपने जो शेयर किया था 57 राइट? 57 है हाँ, कि ये ज़बूर में ये उस वक़्त एक गीत है राइट? इट्स अ साम ऑफ डेविड एक गीत है। उस वक़्त का है जब साउल से दाऊद भागकर एक गढ़ में छुप गया था। हाँ, और उसे नहीं मालूम था कि क्या करना था, बट दाऊद का ईमान सिर्फ खुदावन पर था और उसे पूरा यकीन था। तो उस दौरान दाऊद ने खुदावन से खुदा बात किया कि ए खुदावन मुझ पर मेहरबानी कर क्योंकि मेरी जान तुझ में पनाह लेती है। जैसे हमने ज़बूर 91 में सीखा था कि हम हाँ, खुदावन के जाँ में पनाह लेते हैं, ठीक है? जब तक आफ़त मुझ पर से गुज़र ना जाए, मैं तेरे परों के साए में पनाह लूँगा। तो दाऊद का ये था कि मैं इधर से हटने वाला नहीं, मैं तेरी पनाह लूँगा, तेरे पनाह के बगैर कुछ भी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना खुदावन तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है, ऐसे ही दाऊद भी अटल खड़ा था। मैं खुदावन को पुकारता हूँ। उसने खुदावन को पुकारा और किसी को नहीं पुकारा, ना अपने दोस्तों को, ना अपने माँ-बाप को, उसने सिर्फ खुदावन को पुकारा। खुदावन से जो मेरा मामला वो ठीक कर देगा। उसे मालूम था कि सिर्फ खुदावन ही उसका जो मामला था साउल के साथ जो भी है, वो सिर्फ खुदावन ही ठीक कर सकता है। वो आसमान से मुझे मदद भेजेगा हाँ, और उन वो जो शैतान है, वो जो है, उनकी रुसवाई करेगा वो, जो मुझे तंग कर रहे हैं। जो रुसवाई उसके साथ हो रहा है, उसे मालूम था कि खुदावन देख रहा है, खुदावन ही उसे ठीक करेगा। खुदावन अपना करम और वफादारी मुझ पर भेजेगा। उसे इतना ईमान था कि सिर्फ खुदावन ही उस पर करम कर सकता है। उसकी वफादारी ज़रूर भेजेगा वो, हाँ, राइट? मैं इंसान को हड़प करने वाले शेर-बबरों के बीच में लेटा हुआ हूँ। वो ऐसी जगह था कि उसकी जान मतलब बीच में थी। उनके दरमियान जिनके दाँत वो उनके दरमियान था जो उनके दाँत जो नेज़े और तीर से भी तेज़ थे, जिनकी ज़बान तेज़ तलवार थे। मगर दाऊद का ईमान फिर भी खुदावन ही पर था। उसने कहा, हाँ, ए खुदावन, आसमान पर सर बुलंद हो जा। तेरा जलाल पूरी दुनिया पर छाए जाएगा। ये जो कुछ भी हो सिर्फ खुदावन का जलाल हो। उन्होंने दाऊद के कदमों में फंदा बिछा दिया था और उसकी जान वो खाक में डुबा डुबाने की साजिश की थी। मगर दाऊद फिर भी अपने खुदावन से कहता है कि तू ही मुझे बचाएगा। उन्होंने मेरे सामने एक घर खोदे, गढ़, लेकिन वो खुद इसमें गिर जाएँगे। उसका ये भी था कि जो कुछ हो, चाहे वो घर हो, चाहे उसकी जान, उन्होंने प्लान किया था करने के लिए, पर उसे कुछ भी नहीं होगा। उससे कुछ क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो खुदावन में ईमान रखता है, था और है, जी, राइट? ए ए खुदावन, मेरा दिल साबित कदम है। जैसे हमने बात किया था कि जब तक हम खुदावन के कलाम को ना जब तक हम खुदावन के कलाम पर फोकस ना करेंगे तो हम अटल नहीं रह सकते। हम अपना दिल मजबूत नहीं रख सकते। हम अपने कदम भी अटल नहीं कर सकते। तो खुदावन के कलाम पर हमारा फोकस हमेशा होना चाहिए। जिस तरह दाऊद ने इस उस घड़ी जब वो गढ़ में था और सारे उसके पीछे थे, साल उसकी जान के पीछे था, वो फिर भी खुदावन की प्यार में खुदावन के वादों पर अटल खड़ा रहा। मैं साज़ बजाकर तेरी मद सराहना करूँगा कि वो फिर भी खुदावन की हम्दो सना करेगा, खुदावन की जलाल में करेगा। कहते हैं ना कि
दाऊद ऐसा था, जब खुदावन का रूह दाऊद पर आता था, दाऊद नाचने शुरू हो जाता था, खुदावन की हम्दो सना करता था, वो तालियां बजाता था, राइट? हाँ, तो वो फिर भी हाँ, अटल खड़ा रहा। ए मेरी जान जाग उठ, ए सतार और सरवर, कि वो अपने आप को उठा रहा था कि खुदावन मेरे साथ है, जाग उठो। ए रब, कामों में मैं तेरी सताइश, उम्मतों में तेरी सराई करूंगा, कि जो कुछ भी हो मैं तेरी जलाल करूंगा, तेरी तारीफ करूंगा, तेरी हम्दो सना करूंगा। क्यों? ये आप 7 और 8 पढ़ रहे हो ना? जी। हाँ, क्यों? क्यों करेगा? क्योंकि तेरी अजीम शफकत आसमान जैसी बुलंद है, प्रेज़ गॉड। तेरी वफादारी बादलों तक पहुंचती है। कि खुदावन का सिर्फ इधर-उधर सताइश नहीं होती है, आसमान और ज़मीन पर, बादलों पर, पूरी दुनिया में, पूरी जान में खुदावन की हम्द और सना और सताइश होती है। कि खुदावन आसमान पर सरफराज हो और तेरा जलाल पूरी दुनिया पर छाएगा। तो जिस तरह दाऊद अटल खड़े हुए थे अपने खुदावन के साथ, सिस्टर डायना, ऐसे ही जो आपने टेस्टिमनी अभी दी थी कि आपके ऑफिस में जो आपको एक टास्क मिला था और आप नहीं जानती थी, मगर आप अटल खड़ी रही, आपने सीखा, और आपका ये कहना है, गवाही है कि और किसी ने नहीं मदद किया, सिर्फ खुदावन ने मदद किया। और खुदावन ने क्यों मदद किया सिस्टर डायना? क्योंकि आप उस पर ईमान रखते हो, उसके वादों पर ईमान रखते हो, आप उससे प्यार करते हो, खुदावन आपसे प्यार करता है। हाँ, मेन तो वही है कि मतलब मैंने एक ही बार बोला कि पवित्र आत्मा, जीसस, मुझे नहीं मालूम ये कैसे होगा, मैं क्या करूं? मैं देख, पहले मैंने जस्ट एक ही बार मेरे बॉस को ऐसे बोला ना, अ, सर मतलब मैं घर कैसे जाऊंगी? ऐसे वो एक डाउट आया मेरे पास, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं था सिस्टर उस टाइम पे, 10 साल पहले ना, हम्म 10-12 साल पहले मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो हम्म इट इज इम्पॉसिबल टू गो अराउंड इन दुबई वेयर देयर इज नो बस स्टॉप। आप सोचो कि मेरे ऑफिस के बाहर बस स्टॉप नहीं है, हम्म टैक्सियां रुकती नहीं है, क्योंकि इट इज ऑन द मेन रोड। ठीक है। हम्म उस टाइम रात को एक लेडी अगर खड़ी रहे, इट्स दुबई इज वेरी सेफ, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। लेकिन हम्म आप सोचो 9-10 बजे कौन आएगा? बट प्रेज बी टू गॉड, नॉट वन, एक दिन भी ऐसा नहीं था कि कैसे भी ना, मतलब अगर 7 बजे मेरे बॉस ने ऐसा भी कहा कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम उनको जो भी पता चला बाद में कि मैं 10 बजे, 9 बजे तक, 10 बजे तक ऑफिस में बैठी थी, हम्म तो उनको भी शर्म आई। तो वो क्या कह रहे, नहीं तुम्हारा टाइम तो 3:30 बजे तक का है, मैंने सोचा तुम 5 बजे तक बैठोगी, तो 5 बजे तक तुम आओगे क्या मुझे ड्रॉप करने के लिए घर पे? 5 बजे, there are these small nitty-gritty problems which हम्म according to them it is small, but for normal mediocre people, middle class people like us at that time, for us, these small things matter ना, कि हम्म उस टाइम पे टैक्सी लोग है ना, रुकते भी नहीं, उन लोग आपको देखेंगे, उनकी टैक्सी खाली भी है तो भी दे विल नॉट स्टॉप, बिकॉज इट इज देयर शिफ्ट टाइम। उन लोग अपना, दे स्टार्ट देयर शिफ्ट फ्रॉम 5 इन द मॉर्निंग टू फाइव हम्म इन द इवनिंग, और 4 इन द मॉर्निंग टू 4 इन द इवनिंग। तो उन लोग बिल्कुल रुकते ही नहीं है।
उस टाइम पे मेरे ऑफिस के यहाँ पे कोई मॉल वॉल कुछ नहीं था, रेस्टोरेंट्स नहीं थे। अभी तो मतलब वहां दैट्स लाइक अ हैपनिंग स्ट्रीट नाउ, टैक्सियों की लाइन पड़ी है वहां पे। ओके। हाँ, बस स्टॉप के लिए आपको एटलीस्ट 20 मिनट 25 मिनट चलना पड़ेगा। वो भी मेरे घर की तरफ नहीं जाएगा, वो मुझे 3 बस बदलना पड़ेगा। तो ये सब बहाने लगते हैं ना अपने बॉस लोगों को, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास है नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर ने वो मुझे भेजते थे कोई ना कोई टू ड्रॉप मी टू एनी बस स्टॉप दैट वुड टेक मी। चलो कोई नहीं, अगर 1 घंटा और भी लग जाए, गॉड ब्लेस्ड मी विद सच अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड कि वो खुद ऑफिस से लेट आके वो उतना उतना बेसिक काम कर देते थे कि मैं फटाफट वॉश लेकर अपना खाना बनाऊं एंड गेट रेडी फॉर नेक्स्ट डे। So Okay. God used to send me help in some way or the other, and his mighty angels used to come to take me right up till my doorstep. Praise God. Yeah. Sister, you want to continue with the... Yes, sister, आप कंटिन्यू करें। मैं I thought I would do the first few this one. So I thought you have some testimony for this. Do you want to share something for the 7 and 8 that you just say? Just said, my heart is steadfast, oh God, my heart is steadfast. मेरे मन खड़े हो, ओ सितारों और वाणियों, बजना प्रारंभ करो, आओ हम मिलकर प्रभात को जगाएं. That means in verse 8, David is saying, I will sing and make melody. Awake, my glory. Awake, O harp and lyre. I will awake the dawn. So he is giving thanks and praises, making melody in his love for God. Even in this frightful situation that he is in the cave, he is thanking, praising God with harp and lyre, है ना। तो हमें भी हमने ये याद रखना है कि रिजॉइस इन एवरी सिचुएशन, थैंक गॉड इन एडवांस कि आपने मेरे लिए ये कर दिया है। थैंक यू जीसस दैट आपने, मुझे नहीं मालूम ये कैसे होगा, लेकिन आपने मेरे लिए कर दिया। गा मेरे मन गा कि प्रभु ने मेरे लिए ऑलरेडी ये कर दिया है। I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. Verse 9, हे मेरे स्वामी स्वामी, हर किसी के लिए मैं तेरा यश गाता हूँ, मैं तेरी यश गाथा हर किसी राष्ट्र को सुनाता हूँ. That means he is thanking the nations, he is praising the Lord, and he is making the nations hear that he is giving thanks to the Lord even in distress, and the while being in that frightful situation under in the cave where Saul is after him, after his life, he is glorifying God in advance. वो पहले से Exactly. थैंक यू बोल रहा है प्रभु को, पिता परमेश्वर को, कि आपने, मैं तो सारे जहां को
अपनी अपनी खुद की आत्मा को वो कह रहा है कि उठ जा और प्रभु के गुण गा एंड विद म्यूजिक। क्यों? क्योंकि मैं पिता से प्रेम करता हूँ और मेरा ईमान उन पे है कि वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। भले ही सिचुएशन कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, वो मुझे, जो मेरे शत्रु हैं, जो भी मेरे एनिमीज हैं, के सामने मुझे वो यशस्वी, यानी यशस्वी बोले तो वो तो एकदम मस्त हिंदी हो गया, सक्सेसफुल इन Okay. that I am successful in every area. Whatever is coming against me, he brings those people down and he exalts me. Praise God. And be the verse 10 is, for your steadfast love is great to the heavens, your faithfulness to the crowd. तेरा सच्चा प्रेम अंबर के सर्वोच्च मेघों से भी ऊंचा है. That means in English, your steadfast love is great to the heavens, your faithfulness to the clouds. That means उसके ऊपर कुछ है ही नहीं ना. स्वर्ग से ऊपर आपका आपको उसका उनका प्रेम है हमारे लिए, और बादलों से भी ऊंचा उनका प्रेम है हमारे लिए. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. परमेश्वर महान है, आकाश से ऊंची उसकी महिमा धरती पर छा जाए. तो दाऊद कह रहा है कि गॉड, यू आर exalted above the heavens. क्योंकि जो हेवन, जो हेवन को क्या बोलते हैं? जन्नत. जन्नत, हाँ, किंगडम ऑफ हेवन, जन्नत, जो प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने बनाया, उससे ऊपर वो है, उनका प्रेम है. और आकाश से भी ऊंचा, आसमान से भी ऊंचा, बादलों से भी ऊंचा, और इस पूरी धरती में उनकी महिमा छा जाए. लेट हिज ग्लोरी बी ओवर ऑल द अर्थ. Amen, amen, and amen. Amen. And sister, हमने यही जो आप सिखा रही, हमें आज रिवाइज करा रही थी. सो जब हम खुदावन की जो उसके पहले दूसरे तीसरी आयत में, कि उसमें हमारे लिए बेनिफिट्स भी है. हाँ, राइट. कि खुदावन हमारे बिहाफ पर हमारे लिए परफॉर्म करता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, खुदावन करता है. राइट. वो हाँ, अपने जो उसकी जो प्लान्स है वो हमारी जिंदगी में लाता है. हाँ, राइट. और जो उसके प्लान्स होते हैं हमारी जिंदगी में, वो कंप्लीट भी करवाता है, वो कंप्लीट भी करता है. जी, वो हमें रिवॉर्ड भी देता है. राइट. वो हमारी मदद आसमान से भेजता है, हाँ, अपने घर से भेजता है. वो हमें लोगों जो हम पर बातें करते हैं, उंगलियां उठाते, like he saves us from slanders and he yes, approaches us, right, from yes, people who speaks false things against us. yes. Right. Amen. Thank you, Jesus. And he sends his mercy. वो हमारे लिए रहम, दया, प्यार और ब्लेसिंग्स, ये जब हम
खुदावन की हमदो सना करते तो ये इसके साथ ही होता आता है हमें, राइट? इट्स लाइक अ सिस्टर पैकेज। आपने क्या वर्ड यूज किया अभी? हम दो सना। जब हम खुदावन की हमदो सना करते हैं, तारीफ करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक पैकेज होता है। उसके साथ हमें खुदावन का प्यार होता है, सच्चाई, उसका रहम, उसका ब्लेसिंग हमारे साथ हमारी जिंदगी में आता है। वो इट्स थ्रू आउट आवर लाइफ, नॉट वन डे बट इट्स थ्रू आउट आवर लाइफ। जब हम खुदावन जैसे, आई थिंक ब्लेसिंग गॉड्स पावर गिवन टू अस टू सक्सीड, राइट? empowered by God यस सिस्टर। ना। तो जब जब हम जैसे आप बता रही थी जबूर में जो आज आप हमें रिवाइज करवा रही है, तो जब हम ये करते हैं तो इनके साथ हमें बेनिफिट्स भी होता है ना, कि एक बेनिफिट होता है कि हमारे मुश्किल घड़ी में खुदावन हमारे हमारे साथ होता आता है। वो हमारे बिहाफ पर खुदावन परफॉर्म करता है। उसके जो प्लान्स हमारी जिंदगी के लिए वो हमें बताता है, और वो ही उसे कंप्लीट करवाता है हमारे जिंदगी में। वो हमें रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड इन उर्दू वी विल से, सॉरी इनाम, सिस्टर, आई इनाम, जस्ट, इनाम। इनाम। कल यस। कल आपने मुझे याद दिलाया था। हाँ, तो हमें वो इनाम भी देता है, ठीक है। वो अपने आसमानी दरीचों से, हेवन, आसमानी दरीचों से वो हमें मदद भी भेजता है, जी। और हमें जो हमारे अगेंस्ट होते हैं, जो हमारे अगेंस्ट बातें करता है, वो हमें उनसे भी बचाता है। जो हमारे अगेंस्ट फॉल्स एक्यूजेशन है, जो हमारे अगेंस्ट जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो सब हमारी मदद के लिए वो भेजता है, हाँ। राइट? और उसका जो 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 पैकेज होता है ना, जब हमदा सुना के, इन शॉर्ट, जो पैकेज होता है जब हम हमदा सुना करते हैं, तो उसमें पैकेज में खुदावन का प्यार, खुदावन की सच्चाई, खुदावन का रहम और खुदावन की ब्लेसिंग वो हमारे साथ हमारी जिंदगी के लिए, हमारे हर हर एक जो हम सांस लेते हैं ना हमारी जिंदगी में, वो हाँ। हमारे इन पैकेज के साथ आता है, हाँ। राइट? सिस्टर वही ऑफिस में एक बार ऐसे होता था कि एक बार एक छोटा नहीं है तो मतलब मुझे इतना मतलब इतना फेवरेटिज्म होता था ना वो ऑफिस में। मैं अपने आप को इतना अकेला पाती थी कभी कभी कि लेकिन अकेला मतलब ऐसे मतलब आई एम नॉट अ वेरी वेरी इमोशनल पर्सन। हम्म। ओके। लेकिन एक बार ही ऐसे हुआ था कि अब मुझे मेरी कोई गलती नहीं होकर गलती किसी और की थी। और जबकि मतलब कोई एक एम्प्लॉय आया जो हम लोग मैं ना उनका एग्जिट, समझो किसी ने रिजाइन किया है या कोई किसी को मतलब कोई टर्मिनेट हुआ है, उनका जो ऑफिस में कंपनी से जो एग्जिट फॉर्मेलिटीज होते हैं हम्म। सब मैं हैंडल करती थी। तो कोई कोई अकॉर्डिंग टू द मतलब जैसे ग्रेड्स होते हैं तो हर एक आदमी का अलग अलग ये होता है ना, हम्म। सिस्टम होता है। हम्म। अ, तो अकॉर्डिंग टू द ग्रेड, तो एक आदमी बार बार आता था और बोलता था कि आपका बॉस है क्या, आपका बॉस है क्या। तो मैंने उनको बताया दो तीन बारी कि नहीं सर नहीं है। फिर मैंने एक बार उनको पूछा कि भैया आपको क्या काम है, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ क्या। तो उन्होंने बोला कि मैं तो रिजाइन कर चुका हूँ, लेकिन मुझे आपके बॉस से बात करनी थी। तो मैंने बोला ओके, लेकिन मेरे बॉस तो छुट्टी पे हैं, वो तो 15-20 दिन तक आएंगे नहीं। तो लेकिन आपने कभी रिजाइन किया? तो वो तो मतलब 3 महीने का ये देते हैं ना, जो उनका कॉन्ट्रैक्चुअल नोटिस पीरियड है। हर एक का कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है। तो हम्म। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्होंने दिया था और मुझे पता ही नहीं। तो हमारा जो सेक्शन था ना,
तो मुझे मेरा प्रॉब्लम वो था उस टाइम पे कि मुझे ना ये क्या बोलते हैं आई वो रोजी वर्ड्स है ना, Hmm. वो नहीं आता था, Okay. अभी तक नहीं आता है। तो अब मैंने उनको सीधे पूछा कि आपने कॉन्ट्रैक्चुअल नोटिस पीरियड दिया नहीं है, तो मुझे आपको मतलब डॉक्यूमेंट टाइप करके मैं आपको दे भेज दूंगी अकॉर्डिंगली। तो Mhm. उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो दे दिया अपना कॉन्ट्रैक्चुअल नोटिस पीरियड। तो फिर मैंने उनके बॉस को कांटेक्ट किया और उनके बॉस ने मुझे वो ईमेल्स भेजे जो उन्होंने Mhm. हमारे डिपार्टमेंट में भेजे थे। तो Mhm. क्या हुआ ना कि अ, ऐसे दिखाई पड़ रहा था कि हमारा डिपार्टमेंट में कोई लैक है। Hmm. तो जब भी मैंने जिनको उनके बॉस ने इंफॉर्मेशन दी थी उनके रेजिग्नेशन वगैरह के बारे में ना, कोई Mhm. वो जो टास्क मुझ पे आता है ना, तो Mhm. सारी उंगलियां मुझ पे उठी कि मैंने मेरा काम ठीक तरह से नहीं किया। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि मैं ये तो फटाफट कर लूंगी, गलती मेरी नहीं थी, लेकिन मैं Mhm. चुप रही उस टाइम पे। और मैंने कहा कि जिनको उनके मैनेजर ने भेजा है इंफॉर्मेशन नोटिस पीरियड का, वो 2.5 महीने बीत चुके हैं और अभी मुझे बहुत मतलब भागा दौड़ी करनी पड़ेगी ना इसके पीछे। Mhm. तो अगली बार से आप वो प्लीज हमें टाइम पर बता दीजिए, ताकि अ, सब काम टाइम पे हो सके। तो बजाय इसके कि मेरे बॉस अ, अ, मतलब मेरी मदद करें हमारे डिपार्टमेंट द्वारा, वो Mhm. मतलब वो मेरे पे ही मेरा ही इंसल्ट करने लगे ना, Mhm. कि जिसको मैंने ईमेल भेजा था अ, वो उनका फेवरेट था या पता नहीं क्या, तो उनको ऊपर उठाने के लिए और मुझे नीचा दिखाने के लिए वो उन्होंने ऐसे कुछ बातें करी Mhm. कि मैंने मेरे करियर के 20 साल में मैंने आंसू नहीं बहाए कभी, लेकिन उस टाइम पे मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं जैसे ही वो एग्जिट हुई ना बिल्डिंग से, Mhm. मैं दिल से इतना रोई कि Mhm. और मैं चाहती थी कि उसी दिन रेजिग्नेशन लेटर टाइप करके अगले दिन मेरे बॉस के मुंह पे मारूं। बट प्रेज बी टू गॉड कि ही एग्जॉल्ट्स द लोली बोलते हैं ना, Mhm. उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं अगले दिन से एकदम छाती ठोक के मैं गई ऑफिस। बार बार मैं रोती थी। ऐसे Mhm. 1 महीना गुजरा, वो आदमी आया, उसका एग्जिट फॉर्मेलिटीज अच्छे से मैंने कर दिया टाइम पे। प्रभु ने मुझे मतलब पिता परमेश्वर ने मुझे उस टाइम पे भी नहीं छोड़ा और he exalted me. I was able to finish even that task within that 2-3 days time, which was hidden from me. Like लोग आते हैं, झूठ बोलते हैं या आपको नीचा करने के लिए। मुझे नहीं मालूम कि that person did it on purpose to put me down, or that Mhm. person must have forgotten. I give that benefit of doubt. It doesn't even matter. लेकिन पॉइंट ये है कि मतलब प्रेज बी टू गॉड कि उनको बाद में पिता परमेश्वर ने he just shut all those people up, you know. I didn't have to do anything. I just continued doing my work quietly. ना मैं इतना
मतलब जैसे अगर मतलब मैं सुबह जाके मेरा टाइम कंप्लीट करके अपना काम करके मैं प्रभु को बोलती थैंक यू लॉर्ड कि today's day was good, you helped me out. It was only through your love that I could complete this work. So this also was a is a testimony related to this. I can vouch for this psalm. Mhm. Uh, Even in the darkest moments, um, uh, the Lord was with me. It was like I was in that cave. I had to be. I wanted to resign and um, you know put throw that resignation on their face and make big of myself. But then I said no. I am not a quitter. I will not quit. I am a victor in Jesus Christ. God is with me. Who can be against me? What can be against me? Praise be to God. He was with me. He was with me yesterday. He is with me today and forevermore. His love is steadfast, and my heart is also steadfast in Him. Praise God. Praise God. So we can do the. Does anybody want to share any testimony, anything? Sorry, I did all the talking today. Hello, am I audible? Hello. Yes, sir, sister, I can hear you. Okay. I think sister, कोई भी नहीं है. तो सिस्टर डायना, आपने आज बहुत अच्छा ज़बूर हमारे साथ शेयर किया था एंड हमें बहुत सारी चीज़ें भी नई सीखने को मिला और इट रिफ्रेशेस माइंड अगेन कि खुदावन की जब हम सना करते हैं कोई मुश्किल घड़ी में तो वो मुश्किल घड़ी के लिए नहीं बट में वो मुश्किल घड़ी वो सॉल्व हो जाता है यू जस्ट कम आउट ऑफ इट आपके ब्लेसिंग्स उसमें से पोर आउट होते हैं क्योंकि खुदावन हमारा जिंदा खुदावन है जी. सो सिस्टर आपको और कुछ शेयर करना है या आज के नहीं लिए हम सिस्टर, नहीं सिस्टर, हो गया. ओके We covered this Psalm 57. No, praise God. प्रेज गॉड शुक्र है खुदावन आज मैं मतलब प्रिपेयर्ड भी नहीं थी, लेकिन प्रेज गॉड, आई अगेन सेड होली स्पिरिट, आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन बट यू हेल्प मी. एंड ही हैज हेल्प्ड यू प्रेज गॉड ओके सिस्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे क्लोजिंग प्रेयर्स हम करते हैं जी. कि आए अपने आंखों को बंद करके अपने सर को झुकाते हैं स्टॉप शेयर. थैंक यू जीसस शुक्र है खुदावन शुक्र है खुदावन आज के इस दिन के लिए आज के तेरे कलाम के लिए कि हमने जो आपने सिस्टर डायना के द्वारा हमें हमद सना और तेरी तारीफ करने की तौफीक जो अता की कि हम उसे इस्तेमाल करें और हम तहे दिल से शुक्र करते हैं कि आप हमारे जिंदा खुदावन हो पाक रूह हम शुक्र करते हैं कि आपने इस ज़बूर को और भी आसान कर दिया हमें समझने के लिए हमें सिखाने के लिए और हमने ये सीखा है कि हम खुदावन की तारीफ तो हम सना हमेशा हमेशा करें शुक्र करती हूँ खुदावन कि आज इस ज़बूर के द्वारा जो भी सुनने वाले हैं और जितने भी सुनेंगे इन सब के दिलों में इन सब की जिंदगी में तेरी फजल तेरी बरकत हमेशा हमेशा जारी हो गई है हम शुक्र करते हैं कि इस पूरे दिन के लिए इस पूरे माहौल के लिए और जितने भी सुनने वाले हैं जैसे आलम के सब लोग जो इससे कनेक्टेड है इन सब पर बरकत और तेरी बरकत और फजल हमेशा जारी है और होती रहेगी हम शुक्र करते हैं इसके सिस्टर डायना के द्वारा जो पाक रूह आपने सिस्टर डायना को गाइड किया और इसको इतना आसान कर दिया है कि हमें
हमने इसे समझ लिया है, और हम यही ज़बूर बार बार हम अपने दिलों में, अपने अपने जिंदगी में हम ये हमेशा याद करेंगे और करते रहे कि खुदावन तू ही तारीफ और काबिल है, और तेरी जलाल हमेशा हमेशा हो, कि हम वो चिराग है जो तेरी हमदो सना हमेशा हमेशा के लिए करते रहेंगे। शुक्र है खुदावन तेरी बरकत के लिए, तेरे फजल के लिए, कि तू हमेशा हमेशा हमारे साथ है। आमीन। Amen. 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 Praise God. Thank you, Praise Jesus. God. Thank you, Jesus. Okay, Sister Dinah, thank you. Thank you, Brother Jude. We are Brother leaving the Jude. meeting.